Today we are going to see a new chapter from class 5 English NCRT. Name of the chapter is Bully, the little bully. Now what is the meaning of bully? Bully means to hurt anyone, to tease anyone. When you tease a person or when you irritate them, that means you are bullying that person. So the chapter's name is The Little Bully. Now who is bullying in this chapter? Let us see. Do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. Okay. See here, he's asking that do you know of any child who teases others or pushes them around? You can see here two children, they are fighting with each other. Yes, and here also you can see, I think this is Hari. He's pinching, he's bullying, he's irritating this girl. So today in this chapter we are going to study about this Hari, what type of boy he is, how he troubles other children. Trouble means to irritate or to tease, okay, to give pain to others. That is trouble, means you are troubling other person, you are giving pain to other person. So in this chapter we are going to see about this Hari. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Okay, एक बहुत टाइम पहले, बहुत ज्यादा टाइम पहले नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले ही एक छोटा लड़का था जिसका नाम हरी था. हिज नेम वाज हरी. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all boys and girls who went to school with him. Okay. अब एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था हरी. वो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन वो छोटा ही लड़का था, आपके एज का हो सकता है, फिफ्थ सिक्स में पढ़ता रहा होगा. वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे क्या अच्छा लगता था, बाकी बच्चों को टीज करना. जो आपके क्लासमेट होते हैं, जो आपके क्लास में बाकी के बच्चे होते हैं, उनके साथ वो टीज करता था, मतलब उन्हें परेशान करता था. ओके, ही लाइक टू टीज अदर चिल्ड्रन इन हिज स्कूल. He could make a big bruise appear in half a second. Okay, when he went to school, what he loved to do, he loved to do most was to pinch. Pinch मतलब नोचना. See here, he's pinching this girl. ऐसे छोटी सी उंगली से बारीक से नोचते हैं ना, उसको pinch बोलते हैं. Okay, to pinch. He could make a big bruise. Bruise means a black color or a red color, you can say black or red color, that appears when you get hurt. After getting hurt in your skin, on your skin, what happens, a black mark or red mark appears, so that is bruise. So when this Hari, he used to pinch other children, within a second a bruise would appear, means black or red color mark would appear. Another trick he played was pricking people with a pin. Pricking means to prick, सुई चुबाना, या फिर सेफ्टी पिन हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी नुकीली चीज से वो चुबाता भी था पिन से. तो ये दो काम उसे बहुत अच्छा लगता था. एक तो वो पिंच करता था और दूसरा वो प्रिक करता था. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो इसे पता चलता है कि बाकी के बच्चे तो इरिटेट ही हो गए, उसे तो कोई पसंद नहीं करेगा. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. अब बाकी के बच्चों को भी वो पिंच करता था. अब बाकी के बच्चे क्या करते थे, रिटर्न में उसे भी पिंच करते थे, लेकिन हरी बहुत तेज पिंच करता था, बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड पिंच करता था. तो बाकी के बच्चे उससे रिवेंज नहीं ले पाते थे, उसे उसे बदला नहीं ले पाते थे. दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स. अब वो अपने टीचर को भी कंप्लेन नहीं करते थे कि हरी मुझे पिंच कर रहा है, मुझे प्रिक कर रहा है, ब्रूइस आ गए. वो बार बार अपने टीचर को जाके कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो एक टेल बन गया था, एक स्टोरी जैसी बन गई थी कि हरी तो सबके साथ ऐसा ही करता है. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. अब एक आपके स्कूल से भी आपको कहीं ना कहीं तो पिकनिक लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर भी हरी के स्कूल से उन्हें पिकनिक लेकर गए. एक दिन उन्हें पिकनिक लेके गए, कहाँ, सी साइड, मतलब किसी बीच के पास, किसी समुद्र के पास, सी साइड. पूरे दिन के लिए, होल डे, फॉर होल डे. ऑल द चिल्ड्रन वेर मोस्ट एक्साइटेड. एक्साइटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आप एक्साइटेड होते हो.
ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि स्कूल से पिकनिक लेके जा रहे हैं किसी समुद्र के पास, किसी पानी के किनारे के पास। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. बहुत, और उस दिन जिस दिन पिकनिक का डे था उस दिन सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो घूमने जा रहे थे। आप लोग भी खुश होते होगे जब आपको स्कूल से पिकनिक लेके जाते होगे, तो यस, इवन यू फील गुड एंड एक्साइटेड व्हेन योर स्कूल टेक्स यू टू पिकनिक। They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. You can see in the picture a toy train. Children are sitting together, but Hari, this boy is all alone. Nobody wants to sit next to him. Why? Because he is a pincher. He always pinch and prick other children. So other children, they don't want to sit next to him. So they are sitting with others, but no one is sitting with Hari because he's a bad boy. Then when they arrived at the seaside, out jumped all the children and shout of joy. Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. Now when they reached the seaside, means where their destination was, जहाँ उनको जाना था seaside के पास, पानी के पास, वहाँ पर उनका ट्रेन जो है, वहाँ पे जो भी उनका जिस ट्रांसपोर्टेशन से वो आए थे वहाँ पर वो पहुंच गए। अब सब ने क्या किया, वहां से जंप करके, वो ये ट्रेन से ही आए होंगे, तो जंप करके बाहर उतरे और सब शाउट कर रहे थे जॉय से, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, तो वो लोग जॉय से बहुत ज्यादा उछल रहे थे, कूद रहे थे। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड, अब वो पानी का किनारा था तो वहाँ पे सैंड है, रेत है, तो वो रेत में रेसिंग कर रहे हैं और सब मिलके हैंड इन हैंड, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर खेल रहे। पर हरी के साथ कोई नहीं खेल रहा था, नो बडी वॉज प्लेइंग विथ हरी। वाई? बिकॉज he was a bad boy. He always pinched and pricked other children, so nobody liked to sit with him, nobody liked to talk to him, nobody liked to share anything with him. Now Hari was angry. अब हरी को गुस्सा आता है. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. अब जब हरी के साथ कोई खेल ही नहीं रहा है, कोई बच्चा उसके साथ खेल नहीं रहा है, तो वो क्या किया, वो एक सैंडी कॉर्नर, मतलब वही रेत के पास, सैंड के पास एक किनारे जाकर बैठ गया। एक पूल था, पानी का किनारा, वहीं जाकर बैठ गया अकेला। He took out his lunch and looked at it. वो अपना लंच बॉक्स निकाला, जो भी स्नैक्स वो लाया होगा पिकनिक के लिए, वो निकाला और उसे देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच, और वो अच्छा लंच लेकर आया था। जब आप भी पिकनिक पे जाते हो तो आप भी कुछ अच्छा ही लेकर जाते हो ना, तो हरी भी कुछ अच्छा ही लेकर आया था अपने लंच बॉक्स में। देर वेर टू हार्ड बॉइल्ड एग्स, अब वो क्या लाया था, टू हार्ड बॉइल्ड एग्स, उबले अंडे। सिक्स जैम सैंडविच, अब वो सैंडविच भी लाया था जिसमें जैम लगा हुआ था। थ्री पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, थ्री पीसेस ऑफ ब्रेड था जिसमें बटर लगा हुआ था। अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, एक बड़ी सी चॉकलेट भी थी उसके पास। तो ये सारी चीजें वो अपने टिफिन बॉक्स में, अपने लंच बॉक्स में लेके आया था पिकनिक पर। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। अब वो एंग्री था कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी उसका क्लासमेट उसके साथ तो खेल नहीं रहा है, तो वो एंग्री होकर कहाँ चला गया था, कॉर्नर पे जाकर बैठ गया और अपना लंच बॉक्स निकाल कर खाने लगा, और वो किसी के साथ अपना लंच शेयर भी नहीं किया क्योंकि वो एंग्री था। ठीक है, so he did not share any of his uh, food items with other children. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. अब जैसे ही वो टिफिन बॉक्स खोला और खाने जा रहा था, ये इसका टिफिन बॉक्स देखो, अंडे है, सैंडविच है, एग्स है, राइट? तो जैसे ही वो खाने जा रहा था, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम। हॉर्स मीन्स वेरी रफ, रफ एंड टफ, रफ एंड टफ वॉइस उसको सुनाई दी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। नाउ हु इज सेइंग दिस? We will see it. Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? ओके, तो किसी ने हरी को बोला कि गुड मॉर्निंग, मुझे कितना अच्छा लग रहा है आप जैसा एक लड़का मेरे पास देखते हुए। ओके, फिर हरी ने पीछे पलट कर देखा कि कौन है ये। ही स्टेयर्ड, मतलब वो घूरने लगा, और ही स्टेयर्ड इन फ्राइट, फ्राइटन, जब कोई आप अटपटी सी चीज देखते हो तो आप डर जाते हो, तो ये भी थोड़ा सा फ्राइटन हो गया। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब, मॉन्स्टर क्रैब, सी दिस इज क्रैब, ये एक पानी का कीड़ा है, क्रैब। ओके, ये मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। अब ये पूल के जो, ये जो वाटर है, वाटर के किनारे रेत है, अब ये रेत पर आने लगा, जो क्रैब है पानी से बाहर आ गया रेत पर। His eyes were on the end of short stalk and he looked most queer. Short stalks, stalks मतलब stems,
ओके स्टेम्स एंड क्वीर, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, कोई चीज बहुत अजीब है, स्ट्रेंज है, ऑड है, स्ट्रेंज या फिर ऑड। ओके, कोई भी चीज ऑड लगती है तो उसको स्ट्रेंज बोलते हैं। तो जब हरी ने पीछे पलट कर देखा तो उसने क्या देखा, एक मॉन्स्टर क्रैब। मॉन्स्टर यानी कि खतरनाक, डेविल को कहते हैं मॉन्स्टर, जो मतलब बहुत ही खराब सा क्रैब था, बहुत ही डेंजर सा एक क्रैब था, जो पानी से बाहर आ रहा था, पूल के बाहर आया और सैंड की तरफ बाहर आया और हरी जहाँ बैठ रहा था उसके पास आने लगा। और वो कैसा दिख रहा था, क्रैब बहुत ही क्वेयर था, क्वेयर मतलब बहुत ही स्ट्रेंज था, अजीब सा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, ये क्लॉ क्या है, ये जो उसका क्रैब का हैंड है, फ्रंट पार्ट, ये क्लॉ है, ठीक है, फ्रंट क्लॉ टू हरी। अब उसने हाथ मिलाने के लिए अपना क्लॉ आगे बढ़ाया हरी के पास। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड निब्ड, निब्ड मीन्स पिंच्ड। क्रैब क्या करता है, पिंच करता है ना। तो जैसे ही उसने हाथ मिलाने की कोशिश की, वो क्रैब ने हरी के हाथ को निप किया, पिंच किया। हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड, येल्ड मीन्स टू शाउट लाउडली, शाउट लाउडली। ओके, so when this crab was shaking hand with this Hari, this crab, it pinched Hari so badly that Hari yelled, means Hari shouted loudly. Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly. And to Hari's horror means Hari तो पहले ही डरा हुआ था, तो वो इधर scare को बोलेंगे, he was scared or frightened, इसलिए वहाँ पे horror यूज किया है, frightened. Okay. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. अब ये क्रैब तो उसे पिंच किया ही किया, फिर वो क्रैब ने क्या किया कि यहाँ पे मेरा एक कजिन भी है। वो किसे कजिन कह रहा है, क्रैब ये लॉबस्टर को अपना कजिन कह रहा है, ठीक है, उसे अपना कजिन कह रहा है। और ये लॉबस्टर कौन से कलर का है, सैंडी कलर, मतलब रेत के कलर का ही है। क्रॉलिंग, क्रॉल करता हुआ वो भी पूल से बाहर आ रहा है। ये लोग क्रॉल करते, ये लोग वॉक नहीं करते, ये जो क्रैब है और स्नेक है, ये सब लोग क्रॉल कर कर चलते हैं। तो वो भी पूल के बाहर आने लगा, कौन, ये लॉबस्टर, दिस इज लॉबस्टर, सैंड का कलर का जो लॉबस्टर है ये। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। अब जैसे ही हरी कुछ बोले उसके पहले ये लॉबस्टर भी उसके पास आया और उसे भी पिंच कर दिया अपने क्लॉस से। क्लॉस में यानी कि उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, नुकीला पार्ट, ये क्लॉस है, वहां से उसको पिंच कर दिया हरी को। फिर से हरी ने जोर से चिल्लाया, पहले तो उसे क्रैब ने पिंच किया, फिर नेक्स्ट उसको लॉबस्टर ने भी पिंच किया। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स एंड प्रॉन्स। अब इतने सारे कीड़े मकोड़े पानी से बाहर आ रहे। श्रिम्प, श्रिम्प भी एक तरह का प्रॉन्स की तरह एक कीड़ा ही है। ओके, तो ये सब क्या है, पानी के जानवर है, ये श्रिम्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, ये सारे पानी के कीड़े। एंड दे pricked हरी टिल ही was soon black and blue with their pinching। अब जितने भी ये कीड़े होते हैं ना, ये सब ऐसी इतना खतरनाक पिंच करते हैं कि वो आपके स्किन में ब्रूइस जैसा आ जाता है। ओके, तो सबने मिलके इतना पिंच किया कि हरी ब्लैक एंड ब्लू कलर का हो गया, मतलब उसकी पूरी स्किन जो है ब्लैक एंड ब्लू हो गई, क्योंकि हर तरफ से उसको पिंच कर रहे हैं, कभी श्रिम्प पिंच कर रहा है, कभी प्रॉन्स, कभी क्रैब, कभी लॉबस्टर, है ना। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। अब ये क्रिएचर्स किसको कहा गया है, क्रिएचर्स क्रैब है, प्रॉन्स है, श्रिम्स है, लॉबस्टर है, जितने भी जो अक्वेटिक एनिमल्स टाइप के हैं ना, ये इसको सब क्रिएचर बोला गया। तो ये क्रिएचर सब क्या कह रहे हैं, हरी को पूछ रहे हैं, डोंट यू लाइक इट, हमसे हाथ मिलाना तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या, ऐसा पूछ रहे। वाई वी वेर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वेर अ चैंपियन पिंचर एंड प्रिकर योरसेल्फ। अब ये जो क्रिएचर्स है ये उसे कह रहे हैं कि हमें तो कहा गया था कि हरी बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो तो चैंपियन है, सभी बाकी बच्चों को वो नोचता है, पिंच करता है, प्रिक करता है, सुई चुबाता है, तो वो तो चैंपियन है, तो फिर तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए हमारा पिंच। ऐसा कौन कह रहा है, ये जो क्रिएचर है ना, इतने सारे जो श्रिम्प लॉबस्टर है, ये सब हरी को कह रहे हैं कि तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए हमारा नोचना, तुमको अच्छा लगना चाहिए, कम जॉइन इन फन। अब वो बुला रहे हरी को, चलो आओ हमारे साथ खेलो, पिंच करते एक दूसरे को। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, लिफ्ट मतलब ये, लिफ्ट मतलब जम्प्ड,
मतलब उसे इतना पेन हुआ कि वो जंप करने लगा। क्राइंग लाउडली हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल। अब वो लंच खा रहा था तो उसका लंच बॉक्स भी पूल पर चला गया। वो पानी के किनारे बैठा था, पानी में उसका लंच चला गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगैन टू फीस्ट ईगरली। अब जब ये लॉबस्टर ने देखा कि हरी का टिफिन बॉक्स पानी में चला गया तो सब पानी में उतर गया फिर से। उसका एग्स देखो, एक उसका एग खा रहा है, एक सैंडविच खा रहा है, एक बिस्कुट वगैरह खा रहा है। तो उसके टिफिन के पीछे सब लॉबस्टर्स और श्रिम्प्स जो थे वो सब उतर गए। बिगैन टू फीस्ट ईगरली, फीस्ट मतलब वही टिफिन बॉक्स उसका खाने लगे, पार्टी मनाने लगे। Harry saw that they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. अब हरी ने देखा कि सारे के सारे जो एक्वेटिक क्रिएचर्स है वो सब मेरा टिफिन बॉक्स के पीछे चले गए पानी में, मुझे भूल गए पिंच करना, चलो ये अच्छा टाइम है यहाँ से निकलते हैं। वो रोता हुआ वहां से भाग गया। कहाँ भागा? जहाँ बाकी के बच्चे थे वहां भाग गया। They only did to me what I keep doing to the other children. Now, in this paragraph, Hari is realizing that what he did with other children. ओके, आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन ही थॉट। अब वो सोचने लगा कि ये जो पिंच मुझे क्रैब ने किया, ये जो कीड़े मकोड़े ने मुझे आके पिंच किया, मैं भी तो ऐसे ही पिंच करता हूँ बाकी के बच्चों को। बट हाउ इट हर्ट। अब पिंच करने के बाद उन लोगों को कैसा लगता है वो उसे आज रियलाइज हुआ, क्योंकि उसे कोई खतरनाक हार्ड पिंच अब किसी ने किया ना, अब तक तो किसी ने उसे पिंच किया ही नहीं था। तो उसे बहुत मजा आता था टीस करने में। लेकिन अब जब ये क्रैब और लॉबस्टर उसे जोर जोर से पिंच करने लगे तब उसे समझ में आया कि मैं भी तो कितना खराब पिंच करता हूँ बाकी के लोगों को। अब उसे फील होता है कि वो पेन कितना खराब होता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। अब उसे ये लगता है कि मुझे ये क्रैब्स और लॉबस्टर अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये मुझे बहुत जोर से पिंच किया। इसी तरह बाकी के बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे हेट करते हैं क्योंकि मैं भी उन्हें पिंच करता हूँ। वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनीमोर। अब वो खुद से कहने लगा कि मैं अब से किसी को भी पिंच नहीं करूंगा, किसी को भी नोचूंगा नहीं, किसी को भी सुई नहीं चुबाऊंगा। अब मैं ऐसी मस्ती नहीं करूंगा क्योंकि बहुत खराब पेन होता है। ठीक है, तो लास्ट में उसे रियलाइज होता है। उसे कब रियलाइज होता है? जब उसे क्रैब और लॉबस्टर पिंच करते हैं, तब उसे समझ में आता है कि मैं भी इतना खराब पिंच करता हूँ, इसीलिए मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। और ये चैप्टर किसने लिखा है? एनिट ब्लिटॉन ने। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ये। ठीक है, तो क्या पता चलता है इस चैप्टर से कि देर इज अ स्मॉल बॉय हरी हु इज वेरी मिस्chievous, who is very notorious. He always teases other children in his school. One day his school plans for a picnic for a seashore or near the sea. They are taking all the children near the sea, so there all the children are enjoying, but Hari is all alone because nobody wants to sit with Hari, nobody wants to talk with Hari, nobody wants to play with Hari because he's a very bad boy. He always pinches and pricks other students, so nobody likes to be with him. So what he did, he went to the corner, a sandy corner, and he started eating his lunch box which he bought for the picnic. So suddenly crab and lobsters, shrimps, prawns, all these aquatic creatures, they came out and they pinched and pricked Harry so badly that he realized that how I pinched others. He realized the pain, how much pain I have given to other children and what they feel about me. I don't like lobsters and shrimp because they have hurted me the same way other children don't like me. They hate me because even I have given I have given so much of pain to them. So he realizes and he promises himself that from today onwards I will not irritate anyone, I will not trouble any student. Okay, so this is a short story and you can relate this story with your life in your school, in your class also. There may be naughty students who irritate other students, who bully other students, right? You can relate it. Okay, then fine. In next video I will be bringing the exercises of this chapter, question answers, and whatever objectives are there, that I will bring in the next video. So make sure to subscribe the channel,